variation. Worksheet 2 is related with inverse variation. In inverse variation, already I have taught that if x and y are two quantities, then x into y is equal to constant k. In inverse variation, if in inverse variation, if x and y are two quantities in such a manner that x into y is equal to constant k, this k is called variation constant. इस k को कहते हैं variation constant. x into y is equal to k, where k is called variation constant. I'm just going to solve the questions of worksheet 2. Question number 1. In the following table, A and B vary inversely. Fill in the missing values. 1 first. We have this is A, that is B. Seven and 8. Next one is fill in the blanks and 4. Next one is 28. Fill in the blank. You have to fill in the blanks the following, this and that. Suppose that this is equal to x and that is equal to y. Then according to question, we have the same result. In case of inverse variation, x into y is equal to constant k. According to question, we have the same result. According to question, we have 7 into 8 is equal to 4 into x. Therefore, x is equal to 7 into 8 divided by 4. 4 to the 8, this must equal to 14. This is equal to 14. X become equal to 14. Next one is also this 14 by 4. 14 into this 4 is equal to 28 into y, because in case of inverse variation, x into y is equal to constant k. So x into y is equal to x into y, that is constant k. Therefore y is equal to 14 into 4 divided by 28. 14 to the 28, 2 to the 4. That is y is equal to 2. This is equal to 2. Have any doubt in it?
सर वहाँ पर 14 into 4 की जगह 7 into 8 लिख सकते हैं। क्या? सर वहाँ पर 14 into 4 की जगह 7 into 8 दोनों में लिख सकते हैं। 7 into 8, हाँ लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। देखिए 7 into 8, देखो 7 into 8 इज इक्वल टू 56, 14 into 4 that is 56, 28 into 2 that is 56. So all remain same because x into y is equal to constant k, x into y is equal to constant k. That's why 7 into 8 is equal to 14 into 4 is equal to 28 into 2. All are same. Okay. सारे बच्चों को समझ में आया है ना? यस सर। Have any doubt in it? इसमें किसी बच्चे को कहीं कुछ डाउट्स है तो अपना अपना डाउट शेयर कीजिए। हाई डाउट? हेलो नो सर। हेलो, बच्चे बोल नहीं रहे, क्या बात है? हेलो, सर डाउट्स नहीं। ठीक। व्हाट इज द क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द क्वेश्चन? और कौन सा क्वेश्चन है? वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 से पहले देख लीजिए। 1 हमने बताया है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट्स है? नो सर। और भी बच्चे पढ़ रहे हैं, और भी बच्चों का डाउट्स होगा तो अपना अपना डाउट्स पूछिए। हेलो, हेलो, यस सर। और भी बच्चों का डाउट्स अगर है वर्कशीट 2 में तो पूछ लीजिए। एक बच्चे का कहना है क्वेश्चन नंबर 12 बता दिया जैसा, तो 12 पर भी बताऊंगा जस्ट, लेकिन उससे पहले भी किसी क्वेश्चन में डाउट्स है तो पूछ लीजिए। है डाउट्स किसी बच्चे को? नो सर। ठीक है, ठीक है, ओके। आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। A garrison of 120 men has provision for 30 days. At the end of 5 days, 5 more men join them. How many days can they sustain on the remaining provision? Number of men, number of days, a garrison of 120 men has provision for 30 days. At the end of 5 days, 5 more men join them. How many days can they sustain on the remaining provision? Number of men is 120. Days is equal to what? 5.
if number of men become 125, then what is the days? Let required number of days be X, then according to question we have 120 into 25 is equal to 125 into X. Therefore X is equal to 120 into 25 by 125. This is equal to 24 days. Yani your question is this: a garrison of 120 men has provision for 30 days. At the end of 5 days, 5 more men join them. How many days can they sustain on the remaining provision? A remaining number of days they can sustain is equal to 24 days. ऊपर में हमने लिखा है नंबर ऑफ मैन 120 मैन, number of days become equal to 30 minus 5, that is 25. If number of men become equal to 125, then what is the required days? Your cut off. According to questions, I have performed the data. Your data is number of men 120, number of days become equal to 25. After that, if number of men become equal to 125, then we are going to assume the same, that number of days is equal to X. It is your question of inverse variation. So according to question, this into that equal to this into that. 120 into 25 is equal to 125 into X. X is equal to 120 into 25. 120 into 25 is equal to 125 into X. Therefore, X is equal to 120 into 25 by 125. This is equal to 25 5 is 125, 24 5 is 120, 24 days. It is your answer. Have any doubt in it? No, sir. किसी बच्चे को कहीं कुछ डाउट है इसमें? फिर एक बार दोबारा समझा। आप क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चन में है कि ए गैरिसन ऑफ 120 मैन हैज प्रोविजन फॉर 30 डेज। किसी गैरिसन में 120 आदमी है, उसके लिए 30 दिनों का प्रोविजन है। एट द एंड ऑफ 5 डेज, 5 दिन बीतने के बाद 5 मोर मैन ज्वाइन, यानी 5 आदमी और ज़्यादा ज्वाइन कर लिया तो नंबर ऑफ मैन हो गया 125। तो बताइए कि प्रोविजन कितना दिन चलेगा। तो 5 दिन बीतने के बाद योर नंबर ऑफ डेज बिकम इक्वल टू 25, नंबर ऑफ मैन इक्वल टू 120। आफ्टर 5 डेज number of men become equal to 125, then number of days is being assumed as X. According to question, this into that is equal to this into that, because in case of inverse variation, if X and Y are two quantities, then X into Y is equal to K. इनवर्स वेरिएशन में दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन k के इक्वल होता है। दिस k is called variation constant. So x into y is equal to k. Hence 120 into 25 is equal to 125 into x. Therefore x is equal to 120 into 25 divided by 125. 25 5 is 125. 24 5 is 120. So remaining days is equal to 24 days. It is your answer. Have any doubt in it?
किसी बच्चे को कहीं कुछ डाउट्स है? नो सर। क्वेश्चन नंबर 9। अभी हमने पूछा था ना कि क्वेश्चन नंबर 12 से पहले कोई क्वेश्चन से तो कोई बच्चे नहीं बोले। अब एक बच्चे का पूछना है क्वेश्चन नंबर 9। इसलिए ना मैं कह रहा हूँ बेटा कि कॉन्सिक्यूटिव वे में क्वेश्चन को पूछिए 1 2 3 4 5 6 7 तब आइए 12 पर। पहले से बच्चों को क्वेश्चन देख रखना चाहिए। आप ऐसा ही फॉलो करेंगे, सारे बच्चे सिलसिलेवार ढंग से क्वेश्चंस को पूछेंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। ऐसा नहीं है कि 1 के बाद 12 और 12 के बाद 9, 9 के बाद 5, ऐसा नहीं हो, ये सही चीज नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर इसको रब कर देना। यस सर। X into y is equal to k. Like this. Question number 9. A shopkeeper has enough money to buy 40 books, each costing rupees 125. How many books he can buy if he gets a discount of rupees 25 on each book? Number of books, इससे से डाटा तैयार करेंगे हम लोग। Number of books and cost of each book. Number of books, cost of each book. Your number of books is equal to 40 and cost of each book is equal to 125. If number of books is equal to x and cost become equal to 100, how many number of books are there if cost of each book is equal to rupees 100? It is given in the question that a shopkeeper has enough money to buy 40 books. उसको करो, म्यूट करो, म्यूट करो। चलो a shopkeeper has enough money to buy 40 books, each costing rupees 125. How many books he can buy if he gets a discount of rupees 25 on each book? 40/100 करेंगे। हाँ नहीं, कॉस्ट ऑफ ईच बुक इज इक्वल टू रुपीज 125। अब इसमें 25 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, तब कॉस्ट ऑफ ईच बुक हो जाएगा रुपीज 100। तो जब कॉस्ट ऑफ ईच बुक हो जाएगा रुपीज 100, then how many books can be bought? कितना बुक्स और खरीदा जा सकता है ज्यादा अगर कॉस्ट ऑफ ईच बुक 100 रुपीज हो जाए? तब क्या लिखेंगे आंसर में? लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स बी x, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स बी x. Then according to question we have, it is a question of inverse variation. Show 40 into 125 is equal to x into 100. Therefore x is equal to 40 into 125 divided by 100. 25 for the 100, 25 का भैया 1, 25 4 से कैंसिल किया, 40 को 10, that is
x is equal to 50. Number of books become equal to 50. Hence, required number of books is equal to 50. Have any doubt in it? शॉपकीपर 50 बुक खरीद सकता है अगर 25 रुपीज़ का रिबेट मिलता है इस बुक पर। तब पहले कॉस्ट ऑफ इस बुक था ₹125, अगर उसको 25 रुपये का रिबेट मिलता है यानी कॉस्ट ऑफ इस बुक अगर ₹100 हो जाता है, देन ही कैन बाय 50 बुक्स। पहले वो खरीद सकता था 40 बुक्स, इसलिए कि बुक का कॉस्ट है ₹125, अब वो खरीद सकता है 50 बुक्स, इसलिए कि बुक का कॉस्ट हो गया ₹100। ओके, सारे बच्चे इसको नोट करेंगे। Have any doubt in it? किसी बच्चे को कहीं कुछ डाउट्स है? दोबारा क्या? सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में है कि कोई शॉपकीपर 40 बुक्स खरीद सकते हैं अगर ईच बुक का कॉस्ट है ₹125। अगर शॉपकीपर को 25 रुपये का रिबेट मिलता है यानी शॉपकीपर को ₹100 में ईच बुक मिल जाता है, तो बताइए कि वो कितना बुक्स और खरीद सकते हैं। तो 40 बुक्स खरीद सकते थे कब? जब कॉस्ट ऑफ ईच बुक था ₹125, लेकिन जब कॉस्ट ऑफ ईच बुक हो गया ₹100 तो वो 50 बुक्स खरीद सकते हैं। इसलिए अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स बी x, then according to question 40, 125, x 100. This is your question of inverse variation. Show x into y is equal to constant k, where k is your variation constant. That's why we can say that 40 into 125 is equal to x into 100. Therefore x is equal to 40 into 125 divided by 100. 25 for the 100, 25, 5 is 125. This is equal to 10 into 5, that is 50. It is your answer. Required number of books is equal to 50. Shopkeeper can buy 50 books if there is rebate of ₹25 on each book. ओके, अगर हर एक बुक पर 25 रुपये का रिबेट मिल जाए तो शॉपकीपर उतने ही पैसे में 50 बुक खरीद सकते हैं। ओके, हैव एनी डाउट इन इट? नो सर। और भी किसी बच्चे को कहीं कुछ डाउट है किसी भी क्वेश्चन में? वर्कशीट 2 देख लीजिए। किसी बच्चे को वर्कशीट 2 के किसी भी क्वेश्चन में डाउट्स है? इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन यू मस्ट शेयर टू मी अबाउट योर डाउट। किसी बच्चे को कहीं कुछ डाउट्स हो तो आप अपना डाउट शेयर करें। Have any doubt? वर्कशीट 2 के किसी भी क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट्स है? हेलो? नो सर।
तो फिर आगे बढ़ जाए। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ा दे बेटा। यस सर। ठीक, ओके। किसी बच्चे को वर्कशीट 2 में कोई डाउट्स नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करें ना। यस सर। यस सर। ओके, टाइम ऑन वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। देखो बेटा, आज वी नो दैट speed equal to distance by time, therefore distance is equal to speed into time and time is equal to distance by speed. Speed equal to distance by time, distance is equal to speed into time, time is equal to distance by speed. After that, first concept is this. Second concept is to convert kilometer per hour into meter per second. You have to multiply it. You have to multiply it by pi by 18. To convert kilometer per hour into meter per second, we have to multiply by pi by 18. Second का first A, second B, to convert meter per second into kilometer per hour, we have to multiply by 18 by 5. देखो बेटा, दो कंसेप्ट दिए हैं। फर्स्ट कंसेप्ट इज लिस्ट ऑफ फॉर्मूला में हमने दिया है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। Speed equal to distance by time, therefore distance is equal to speed into time and time is equal to this distance by speed. क्लियर है? सेकंड कंसेप्ट है to convert kilometer into meter per second, you have to multiply by 5 by 18. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 by 18 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर, यानी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18 by 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इन सारे कंसेप्ट को जानने के बाद हम लोग वर्कशीट 3 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम बच्चों को नहीं होगी। अब हम वर्कशीट 3 पर भी आते हैं, आवे या नहीं? सर ये दूसरा पॉइंट एक बार दोबारा से। दूसरा पॉइंट है बेटा कि किलोमीटर, जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, किसी ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, सेकंड का ये, तो अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 60 इंटू 5 बाई 18 करेंगे। 6 is 18, 6 10 is 60, 50 बाई 3 मीटर पर सेकेंड, यानी 16 2 बाई 3 मीटर पर सेकेंड।
अगर ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस वन बिकम इक्वल टू 60 इंटू 5/18. 6 किया 6 या 18, 6 10 या 60, 10 5 या 50, 50/3 दैट इज 16.2/3 मीटर पर सेकेंड. और अगर 50/3 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में करना हो तब कैसे करेंगे? 50/3 इंटू 18/5. 3 6 या 18, 5 10 या 50, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर. अब ये दोनों पॉइंट का क्लियर हुआ या नहीं? हेलो हेलो, यस सर. ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो या नहीं? यस सर. हमने अभी जस्ट बताया है टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई बाई 5/18. दूसरा है टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई बाई 18/5. एक एग्जाम्पल के थ्रू दोनों पॉइंट्स को हमने क्लियर किया है कि अगर किसी ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो और उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं 60 इंटू 5/18. आफ्टर सॉल्विंग इट आवर सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू 50/3 मीटर पर सेकेंड दैट इज 16.2/3 मीटर पर सेकेंड. यानी 60 किलोमीटर पर आवर को हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड में 16.2/3 मीटर पर सेकेंड या 50/3 मीटर पर सेकेंड. अब 50/3 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? 50/3 इंटू 18/5. अब जैसे हमने लिखा है कि टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर, अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से. 50/3 इंटू 18/5 दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर. Have any doubt in it? नो सर. आप सारे बच्चों का सारा पॉइंट्स क्लियर हुआ या नहीं? यस सर. हुआ है ना बेटा? यस सर. Have any doubt in it? किसी बच्चों को कहीं कुछ डाउट्स है? यस सर. डाउट्स हो तो पूछ लीजिए. हेलो, नो सर. सारे बच्चे